this length. Okay, first you take the this length. That means if you take the length of AB, so first you take the length of AG. Okay, AG, ठीक है, देन हेयर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इट्स सेम, सो हेयर यू राइट GH. फिर again you see that the difference is here, so you take the another times HB. Okay, so this is the total length of the AB. Okay, the sum of the three sides, जब आप इस three side को you add them, this is the total length of outer line. ठीक है, ये outer line के लिए होगा सब. Okay, so that means AG is equal to 5, GH is given 40, and HB is given 5. Okay, so that means the length of AB is equal to 50 मीटर. ठीक है, इसी तरह सेम आप ब्रेथ के लिए भी यूज करोगे. कोई सा भी आप ब्रेथ ले लो. सपोज यू टेक द BC. okay, we take here BC, that means first you add the BH, then HI, then IC. Okay, so this BH length is 5, all sides से 5 है, 5, then 20, then 5 is equal to 30. That means BC length is 30 meter. Okay, but if you find the out inner side, अगर inner rectangle की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, and suppose outer side आपका दिया है, suppose it is a 50. ठीक है, it's 50 and then breadth is 30. Then you take the subtraction, फिर इस प्लस के जगह पे you have used to the subtraction. Okay, so first you write AB length, first you write AB length and you subtract them the length of AG minus HB. ठीक है, इस लेंथ को आप माइनस कर Yes, देंगे. sir. सो आउटर लाइन इज गिवन 50, फिर AG is equal to 5 and GH again given to the 5. ठीक है, GB 5. So 50 then minus 10 is equal to 40. So outer length is 40 मीटर. ठीक है बच्चे, तो इस तरह आपको ये इनर और आउटर के लिए यूज करना है. चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करते हैं. एक्सरसाइज 11.4. Okay, so first question is given. A garden is 90 meter long and 75 meter broad, and the path length is 5 meter. So built the outer line of boundary 8. ठीक है, 5 मीटर के डिफरेंस के बाद outer line boundary, and find the area of path. You find the area of path. Also find the area of garden in hectares. ठीक है, हेक्टर्स में भी फाइंड करना है और एरिया ऑफ पाथ भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ कर लेते हैं. सब फर्स्ट गिवन टू द गार्डन. ठीक है, दिस इज द गार्डन एंड द लेंथ इज गिवन 90 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन टू द 75 मीटर. ठीक है, 75 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई. 90 मीटर लेंथ एंड 75 मीटर ब्रेथ, एंड देन 5 मीटर के पाथ है. 5 मीटर के पाथ के बाद ही मेक अ बाउंड्री. ठीक है, ऑल साइड से मेक अ बाउंड्री. ठीक है, इस तरह का बाउंड्री इन्होंने सेव कर दिया. सो द लेंथ ऑफ गार्डन इज 90 मीटर, ब्रेथ ऑफ गार्डन इज 75 मीटर, एंड आउटर, दैट मीन्स द पाथ, द डिस्टेंस बिटवीन द रेक्टेंगल गार्डन एंड द बाउंड्री वॉल इज 5 मीटर. 5 मीटर का ब्रेथ है यहाँ. ठीक है, इन दोनों के बीच में. सो फर्स्ट यू टेक द नेम इसका मेंशन कर देते हैं. ए फर्स्ट यू टेक द गार्डन ABCD. ठीक है, देन यू नेम द बाउंड्री GHIJ. ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन इज क्लियर? मयंक,
क्लियर है बच्चे क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन दिस है उसको लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 90 मीटर and breadth of garden meter, breadth of garden 75 meter and width of path, yeah, wide of path is given to the 5 meter. ठीक है, तो first you draw to the figure, first figure को draw करना, ठीक है, then you mention the name A B C D and other you take the G H I J, ठीक है, अपने से कोई सा भी we take the name, ठीक है। So first of all we take here, we see that garden length, that means AB is given, AB is given and BD is also given, length and breadth is given. So first we find the length of outer line, ठीक है, first we find the length of outer. So outer length, ठीक है, सबसे पहले हम outer का फाइंड करते हैं, outer length and outer length you represent to GH, ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, GH से। So outer length को GH, then path की लेंथ आपके पास कितनी दी हुई है, path you take here AB, ठीक है, ये हमारा ए बी है, इज द लेंथ ऑफ गार्डन, इट इज द लेंथ ऑफ गार्डन एंड द पाथ इज गिवन टू द 5। सो आप इसको वर्ड्स में पहले लिख लेना बच्चे, जी ए देन ए बी देन बी एच, ओके। सो ए जी इज गिवन 5 मीटर, ठीक है, पाथ की विड्थ कितनी है 5 मीटर, सो हियर यू टेक द 5 plus AB is given 90, then BH is 5. So that means length of GH is 100 meter. Okay, its length is 100 meter. Then outer breadth, outer breadth. So outer breadth you take here HI. Okay, HI you have take. So here you write सबसे पहले फर्स्ट यू राइट एच बी, ठीक है, ये हमने लेंथ ले लिया, ठीक है, देन यहां से सेम होगा इनकी डिफरेंस, सो बी डी देन डी डी आई, ओके। सो हियर अगेन यू टेक 5 प्लस 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 85, इट इज द ब्रेथ ऑफ द आउटर, ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम बच्चे? No, sir. क्लियर है ना, चलो ठीक है। So now we find the main question is given to you, find the area of path. So area of path, so how to find the area of path, we subtract the bigger rectangle area to smaller rectangle area, okay। So area of bigger rectangle आप जो यूज कर रहे हो लिख लो GHIJ, then you subtract area of garden and you represent the area of garden is ABCD, ठीक है, क्लियर है। area of bigger rectangle, then you subtract them to area of smaller rectangle, then you put here the formula. So here we see that the figure is rectangular shape, so here you take the length into breadth. So length is, you already find GH, length is GH and the breadth is HI, okay, here you find 100
and here you take 85 meter. Okay. Then next, area of another rectangle. So another rectangle is ABCD. Okay, so length is AB, breadth is BC. So first you put the value GH is 100, HI value is 85. Then subtract करना है. Length is given 90 and the breadth is 75. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं. 81 जा 85 1 जा 85, 20 यहाँ पुट. देन नेक्स्ट 9 9 5 जा 45, 45 की 5 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 plus 4 67 and put here 0. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट 0 माइनस 0 0, फिर 0 5 तो कैरी ले बोरो लेंगे तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. देन 4 अगेन ही टेक टू बोरो इज 14, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7. देन 7 minus 6 is equal to 1. So the area of path, ठीक है, area of path is 1700 meter square. ठीक है, 1750 meter square. It is the area of path. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? Then next सर एक बार step is समझा दीजिए. another question. हाँ, कहाँ से बच्चे, कहाँ से नहीं आया आपको? एरिया से. here you find the area of path. तो area of path में bigger rectangle के area से you subtract them the smaller area of rectangle. So bigger area of rectangle, that means GH IJ, and the smaller area of rectangle ABCD. So this is the rectangular shape. So here you take the formula of rectangle, length into breadth, length into breadth. ठीक है, both side you take the length into breadth and put the value. Length is equal to 100, breadth is equal to 85. Another smaller rectangle is 90 and 75. So here you multiply them. 8500, यहाँ another side is 6750. You subtract them, the result is 1750. It is the area of path. Okay. Yes sir. And 10,000 hectometer. ठीक है, 10,000 hectometer. Okay, 1 meter square is equal to 1 upon 1000 hectometer. 1 upon 10,000 hectometer. Okay, so that means you divided here, say 1750 को divide करेंगे 10,000 से. So your result is 0.1750 hectare. सर आवाज नहीं आ रही है. यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है.
हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ आ रही है बच्चे, वॉइस इज क्लियर? Voice clear आ रही है। Yes, Yes, sir. Okay, okay, okay. देखो, so here you find the path of in change into the hectometer and also area of garden. So here the question is given to you find the area of garden and is converted to the hectometer. ठीक है, तो इसको आप convert कर देना hectometer में. So hectometer that means you divided by 10,000. ठीक है, area कितना है हमारे पास? 6,750 6,750. ठीक है, दिस इज द गार्डन, इट इज अ गार्डन एरिया. ठीक है, ये गार्डन का एरिया है और ये बाउंड्री वॉल का, ठीक है, जो गार्डन के चारों ओर लगा हुआ है. ठीक है, सो हेयर द क्वेश्चन इज यू कन्वर्ट टू द एरिया ऑफ गार्डन, मीटर में आया है, इफ यू कन्वर्ट इनटू द हेक्टोमीटर. सो हेयर गिवन द आंसर इज 6,750 मीटर स्क्वायर, बट हेयर यू चेंज इन हेक्टोमीटर. सो हेयर यू डिवाइडेड बाय 10,000. ठीक है, 10,000 से इसको डिवाइड कर देना. ठीक है, क्योंकि बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टोमीटर. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में. तो सेकंड क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन दिया है. ठीक है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं. अगेन आपको इस तरह का एक फिगर है. is given a 3-meter wide path run outside the around the rectangular park of the length. Rectangular park length is given to 125 meter and the breadth is 65. So area of path. ठीक है, this is the rectangular park. ठीक है, this is the rectangular park and the length is given 125 meter and the breadth is given to 65 meter. Breadth is given to 65 meter and the distance between या path length is 3 meter wide. ठीक है, the path length is 3 meter wide. देखो सेम क्वेश्चन हो गया हमारा. ठीक है, इसमें 5 मीटर्स का डिफरेंस दिया था, बट हियर द 3 मीटर डिफरेंस ऑलरेडी इनसाइड रेक्टेंगुलर की लेंथ दी है एंड द वन पर्सन इज राउंडेड. ठीक है, रनिंग कर रहा है. सो इट्स रन टू द आउटर लाइन. ठीक है, इस आउटर लाइन पे रनिंग कर रहा है. ठीक है, तो हियर यू फाइंड द अगेन एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ, सो अगेन यू टेक हेयर नेम ले लेना सेम इसी तरह का ABCD एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द आउटर लाइन. आउटर लाइन का लेंथ फाइंड करना है. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. Hello. This type is a figure and given the length of the outer is 8 centimeter and the breadth is given 5 centimeter and the width of the given to 1.5 centimeter. ठीक है, so again you write them. नेम दे देते हैं ABCD. ठीक है, GHI
J. Okay, so that time given to the outer line. Okay, AB length is, so it is a rectangular figure, that means the opposite side equal. So AB and DC is equal length is the 8 centimeter, and the breadth BC and AD is equal to the 5 centimeter. Okay, so first here you write length of painted cardboard 8 centimeter and width of painted cardboard is equal to 5 centimeter, and the margin, there is a margin given 1.5 centimeter. ठीक है, all sides से margin is 1.5 centimeter. ठीक है, so here again we find the total area of margin. So first you take the length of GH. So length of GH. So total length is AB. ठीक है, and then you subtract him the length of AG. AG minus again you take here HB. Okay. So AB length is given 8 meter and the margin is 1.5. 1.5 this side and 1.5 this side. So 8 minus 1.5 and 1.5 is equal to 3. So 5 meter. That means GH length is 5 meter. Okay, and the breadth of HI. So again, first of all, you take the outer line. Outer line is given BC and the length of BH. But here you subtract BH minus IC. Okay, so BC value is given 5 and BH margin is 1.5. IC margin is 1.5. Okay, so here again 5, 1 and 1.5, 1.5 is equal to 3. So here you take 5 minus 3 is equal to 2. That means breadth is 2 centimeter. ठीक है, 2 centimeter हो जाएगा. Centimeter. चलो next, area of total margin. Area of total margin. So area of total margin. So first you write the area of cardboard. Area of cardboard. Area of cardboard हमारा क्या है? ABCD. ABC. Check the area of smaller cardboard हमारा कितना है? GHIJ. Smaller area of cardboard GHIJ. Okay, so both figure is rectangular, say so simple you take the area of rectangle, that means length into breadth. So length is AB length and the breadth is BC. Then subtract sign, area of a smaller rectangle GH length and the breadth is HI. Put them here value. AB length is 8
centimeter. So here you write 8. Breadth is given 5. So here you take 5. Then you take here minus sign GH. So here we find the GH. GH is equal to 5 centimeter. So here you write 5. Then multiply HI. HI we find here 2. So here you put them 2. So 8 4 ja, 8 5 ja 8 5 ja 40 and 5 2 ja 10. 5 2 ja 10. So 40 minus 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. 40 में 30 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने. द रिजल्ट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में इनसाइड की इनर रेक्टेंगुलर की वैल्यू दी हुई थी, बट दिस क्वेश्चन में आउटर रेक्टेंगल की वैल्यू दी है एंड यू सब्ट्रैक्ट देम द विथ. ठीक है. सब्ट्रैक्ट कर देना विथ को. सो विथ की लेंथ इज 1.5. तो बोथ साइड से 1.5 को आप सब्ट्रैक्ट कर देना. ठीक है. बट अगर आउटर का दिया है देन यू ऐड देम. ठीक है. अगर आउटर आपको फाइंड करना है यू ऐड देम, बट इज इनर फाइंड करना है दैट मींस यू सब्ट्रैक्ट देम. ठीक है. क्लियर है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 3. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करते हैं. अब veranda is width is 2.25 meter is a constructor all along outer a room which the 5.5 meter long and the 4 meter wide. ठीक है. अगेन आपका सेम क्वेश्चन दे दिया है फर्स्ट और सेकंड जैसा. ठीक है. इसका फिगर अगेन देख लो. फिगर इज दिस टाइप्स. इसका फिगर होगा फर्स्ट एक रेक्टेंगुलर शेप बरामदा है. ठीक है. ये ठीक है. ये बरामदा हो गया. ठीक है. एंड द लेंथ इज गिवन 2.25 मीटर. ठीक है. 2.25 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रूम. ये रूम कंस्ट्रक्ट है. ठीक है. इट इज अ रूम एंड द लेंथ ऑफ रूम इज 5.5 मीटर. रूम की लेंथ इज 5.5 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रूम. ठीक है. ये ब्रेथ हो गया इसका इज गिवन टू द 4 मीटर. ब्रेथ इज गिवन 4 मीटर. ठीक है. अगेन यू टेक द नेम मेंशन कर दो. ठीक है. ए बी सी डी. ठीक है. इट्स गिवन द वैल्यू ऑफ इनर रेक्टेंगुलर. ठीक है. इनर रेक्टेंगुलर की वैल्यू आपके पास है लेंथ एंड ब्रेथ. सो सिंपल यू फाइंड द आउटर लेंथ. ठीक है. फर्स्ट हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आउटर लेंथ की. दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन होगा एज इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है बच्चे. किसी को डाउट? No, sir. अब इसी में हाँ. सो फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ बरामदा. ठीक है. यानी कि जो हम अभी निकाल रहे थे एरिया ऑफ पाथ. तो हियर यू राइट द एरिया ऑफ बरामदा. ठीक है. तो बरामदा की एरिया फाइंड कर लेना. नेक्स्ट एरिया ऑफ बरामदा फाइंड करने के बाद द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द बरामदा इज रेट इज 200 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. दैट मीन्स अब इस सरफेस पे सीमेंटेड कर रहा है. ठीक है. चलो सपोज आपने जो भी एरिया फाइंड किया होगा. ठीक है. सपोज हमने ले लिया 60 मीटर स्क्वायर. ठीक है. हमारा एरिया आ गया सपोज 60 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 200 रुपीज. ठीक है. पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट सीमेंटेड इज 200 rupees. So how much you take the amount is 60 meter square. So simple you multiply 200 to 60. ठीक है. 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को. क्लियर है? Yes, sir. इट्स क्लियर बच्चे. Yes, sir. ठीक है. जो भी वैल्यू आएगी ठीक है उस वैल्यू को यू मल्टीप्लाई द 200. ठीक है. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ द सरफेस. ठीक है. जो बरामदा का सरफेस है उसको सीमेंट करने का कॉस्ट है. ठीक है. द कॉस्टिंग सीमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ बरामदा. ठीक. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? इस क्वेश्चन इज गिवन a path is 1 meter wide and the built along the border of the inside square garden. Okay, अभी तक हम we take the rectangular shape, but that time given the garden is square shape and the inside the square garden is 30 meter. ठीक है, गार्डन की लेंथ कितने दिया? 30 मीटर। सो दिस टाइप का आपका फिगर होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनो। अ पाथ इज 1 मीटर वाइड बिल्ड अलोंग द बॉर्डर इनसाइड द स्क्वायर गार्डन ऑफ द 30 मीटर। 30 मीटर ये आउटर आपको बता रहा है। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन बाउंड्री। ठीक है, ये आउटर बता रहा है इज 30 मीटर। दैट मीन्स ऑल साइड से 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। Okay, and the path, the day given to the path inside भी स्क्वायर शेप का ही you draw them। ठीक है, स्क्वायर शेप ही ड्रॉ करना। and the path, जो पाथ है इज 1 मीटर। इस पाथ इज अ 1 मीटर। ऑल साइड से ये 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1 मीटर। ओके, so path length is 1 meter. So here you find the फर्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पाथ। अगेन एरिया ऑफ पाथ कर फाइंड करना है। तो स्क्वायर में ध्यान रखना, स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो दैट मींस बिगर, जो भी आप यहाँ लोगे, सपोज मैंने ले लिया ए बी सी डी। सो बिगर रेक्टेंगुलर का साइड इज ए बी एंड बी सी। So 30 multiply 30 is 3 3 9, 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इनर साइड के लेंगे, इनर साइड मतलब जी एच आई जे, 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यू सब्ट्रैक्ट देम टू 1 1 टू अनदर साइड। सो 30 minus 1 and another side से भी माइनस करेंगे 1। so here side is smaller square side। so 28 minus 28 multiply 28। ठीक है, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28। so 28 का स्क्वायर होता है 784 784। ठीक है, 784 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। so 900 subtracted 784। so 10 6 9 minus 8 is equal to 1। फिर 8 minus 1 8 minus 7 is equal to 1। so here एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ हमारा कितना जाएगा? 116 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर है क्वेश्चन? ये थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड सॉल्व किया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आउटर का वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, इनर हमने फाइंड किया था। ठीक है, हेयर ऑल्सो आउटर आपकी वैल्यू दी हुई है 30 30 20, ऑल साइड स्क्वायर शेप है एंड इनर ऑल्सो स्क्वायर शेप बन रहा है, बट द लेंथ बिटवीन द पाथ लेंथ इज अ 1 मीटर। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 मीटर का है। तो 1 1 बोथ साइड से आप सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू गॉट टू द 28। ठीक है, सो स्क्वायर शेप है, दैट मींस ऑल साइड से ये 28 मीटर्स का होगा। ठीक है, ऑल साइड से 28 मीटर। सो एरिया ऑफ पाथ, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर शेप, सो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड। so 30 multiply 30 is 900, 28 multiply 28 is 784। subtract कर देना, your result is 116 meter square। but here another question is given, the cost of the planting grass is the remaining portion of the garden after the rate is 40 rupees। ठीक है, 40 rupees आपका कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, रिमेनिंग गार्डन। ठीक है, ये रिमेनिंग गार्डन दैट मींस इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये इस एरिया में प्लांटिंग द ग्रास। ठीक है, इस एरिया में प्लांटिंग द ग्रास। सो दिस इज द स्मॉलर स्क्वायर शेप। सो स्मॉलर स्क्वायर शेप का आपने एरिया फाइंड किया है इज 784। ठीक है, 784 एंड 40 रुपीज पर मीटर कॉस्ट आ रहा है। 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रहा है। सो हेयर 784 मल्टीप्लाई
40 कर देंगे, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, प्लस 1 33, 7 4 जा 28, 28 and then 31. So that means the cost of the planting grass is 31,360 rupees, ठीक है, क्लियर।